Good evening everyone. I am Samiksha Pandey, a first year medical student, and today I feel honored to be here to share my NEET UG journey with you all. So like many other students who have a dream of becoming a doctor, or simply to say like millions of students in India who give NEET, they all have dream of becoming a doctor, and I was also once one of them. So I also had a dream of becoming a doctor since childhood. Like many people had that dream, and that dream is literally very fascinating. That dream was also very fascinating for me, like the thought of wearing white coat and stethoscope, and that is how my NEET UG journey began. Because in India we have to give NEET to secure a medical seat in a medical college, and we all know that the competition is very tough, like it is cutthroat competition. So at first everything, like for me it was very difficult, like managing all the three subjects, physics, chemistry, biology, because the subject and the syllabus, like mainly the syllabus, we know कि 11th 12th का आता है, and 11th में 2 बुक हैं, 12th में 2 बुक हैं फॉर केमिस्ट्री एंड फॉर फिजिक्स, एंड बायोलॉजी के लिए 11th की 1 बुक है एंड 12th की 1 बुक है. ओके, एंड वी हैव टू रिमेंबर सो मैनी थिंग्स, ऑल्सो मैनेजिंग स्ट्रेस, pressure, competition, and the fear of failure, the main thing. ठीक है. So I would say for the fear of failure is not a bad thing, actually it's a good thing, क्योंकि आप उस डर से आप काम ज़्यादा करते हैं. ठीक है, बट इतना भी फियर ऑफ फेलियर नहीं होना चाहिए कि वो आपको डिमोटिवेट कर दे और आप काम करना ही छोड़ दें, आप हार मान लें. ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है. सो फियर ऑफ फेलियर इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट द फियर ऑफ फेलियर फॉर अ 17-year-old, क्योंकि वी ऑल गिव नीट अराउंड एट दैट एज. द मोमेंट वी स्टार्ट आर नीट जर्नी, वी ऑल आर अराउंड एट दैट एज. Okay, so to bear the fear of failure at that age, that is too much to bear. Okay, so at one moment also, like I also literally break down in front of my parents. Yes, in front of my parents. But the thing is that हमें अपने डर पे काबू पाना होता है. ठीक है, क्योंकि वो कहावत है ना कि डर के आगे जीत है. तो हमें अपने डर पे काबू पाना होता ही है अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो. ठीक है. और नेगेटिव सोचने की जगह पे हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि जितने चांसेस नेगेटिव होने के हैं उतने ही चांसेस पॉजिटिव होने के हैं, क्योंकि दोनों 50-50 चांसेस है. लेकिन हमारा माइंड नेगेटिव ज़्यादा सोचता है कि ये हो जाएगा. तो अगर नेगेटिव हो सकता है तो पॉजिटिव भी तो हो सकता है. सो हमें ये सोच के चलना चाहिए. मुझे मालूम है लाइक कि सेइंग इज़ very easy but managing is very very difficult. Okay, and तो यही सब सोच के मैंने फ्यूचर का ना ज़्यादा सोच के कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, मैंने प्रेजेंट का सोचा. एंड ऑल आई डिड वॉज जस्ट हार्ड वर्क, क्योंकि हार्ड वर्क कांट बी रिप्लेस्ड, नथिंग कैन बी गेन्ड विदाउट हार्ड वर्क. ओके, हार्ड वर्क इज़ इररिप्लेसेबल, बट हार्ड वर्क along with the smart work is important. Okay, सिर्फ हार्ड वर्क आप करके नहीं कर सकते हो. एक कंपटीशन निकालना जिसमें इतना कट थ्रोट कंपटीशन है. ओके, सो and becoming a doctor was my dream since childhood literally, so there was no if and but for me. I have to do it. Okay, and my parents literally they played a very huge role, and like they have always supported me. So जहाँ भी मैं हूँ आज वो अपने पेरेंट्स के वजह से हूँ. and in this journey I have learned many things, and one of the most important thing I learned in this journey that if your goal is clear, what you have to do and what you have to not do, then you can do anything in your life. Okay, and you will find a way if your goal is clear. Like God help those who help themselves. Now if we talk about the subject wise strategy, so every subject needs a different approach. Okay, so I would say you have to revise it again and again. For biology, everyone know it that for biology revision is the key strategy, because in biology you have to learn so many things.
like literally you have to mug up. Some things I know you have to understand, but there are only few things. Like in human physiology, you have to understand the formation of urine, renal function, all those things like these. But most of the things you have to mug up. Like in plant kingdom and in animal kingdom, what you have to understand. Okay, like in plant kingdom, chalo, we can see and we can say that ki life cycle of the plant you have to understand to some extent, but the names of the plant, its scientific name specially, and exam में हम जानते हैं कि सिर्फ scientific name से ही आता है, like options are given in the scientific name. Also in animal kingdom हमें नाम्स जो है वो scientific name में याद करने होते हैं, so you have to mug up, you have to learn those things. And it is fixed that question will come from plant kingdom and animal kingdom, and there are no alternative, you have to learn it. So, and also there is no need of understanding those things. Okay, so I would say you have to revise again and again, not just once and twice. Once and twice is not enough, minimum you have to revise it for 10 times. ठीक है, because you have to know each and everything, each and every line of NCERT is important. आपको ज़ुबान पे NCERT की लाइन याद हो जानी चाहिए. एंड हम सबको मालूम होता है कि नीट के लिए स्पेशली फॉर द बायोलॉजी NCERT इज़ द भगवत गीता और द कुरान, वॉट एवर यू से. NCERT ऐसी चीज़ है कि आप जितने ज़्यादा बार उसको पढ़ोगे, जितने ज़्यादा बार रिवाइज करोगे, आपको हर बार कोई ना कोई नई चीज़ मिलेगी. लाइक मेरे साथ भी ऐसे ही होता था कि लाइक मैंने एक चैप्टर को अगर 2-3 बार पढ़ा हुआ है तो मुझे लगता था कि मुझे सब कुछ आ गया है, ठीक है, लेकिन मैं फिर से उसको रिवाइज़ करने जाती थी तो मुझे फिर से कुछ उसमें नया चीज़ मिलता था. ठीक है, आपको वो चैप्टर पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि आपको सब कुछ मालूम है, आपको सब कुछ याद है, लेकिन आप उस चैप्टर का NCERT पढ़ोगे और NCERT उठाओगे तो आपको जब आप पढ़ोगे आपको हर बार नई चीज़ मिलेगा. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द केमिस्ट्री, सो केमिस्ट्री इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू द 3 parts: organic, inorganic and physical chemistry. So firstly we will talk about the physical chemistry. So coming to the physical chemistry, I would say for physical chemistry, practice numericals as many as possible. ठीक है, concept is also important, but learning the formula is equally important in physical chemistry, क्योंकि you have to directly apply the formula. So for learning the formula, I would say make formula sheets. Like एक पेज में आप एक चैप्टर के फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि उससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, आपका पूरा फार्मूला रिवाइज हो जाएगा, एंड देन यू स्टार्ट सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स. ओके, सो अब उस क्वेश्चन पे आते कि हमें कितने न्यूमेरिकल सॉल्व करने चाहिए. फॉर माई सेल्फ आई वुड से आई हैव सॉल्व 100 to 150 न्यूमेरिकल्स इन फिजिकल केमिस्ट्री. और एक बार में सारा न्यूमेरिकल सही नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप एक बार में हाफ भी सही कर रहे हो, इट मीन्स यू नो द बेसिक, यू नो द 50%. उसके बाद जो आपसे गलती हो रहा है, जो हार्ड क्वेश्चन है, आप उस पर फोकस करो. ठीक है, एंड ऑल ऑब्वियसली रिवाइज द फार्मूला अगेन एंड अगेन. ठीक है, to inorganic chemistry, I would say inorganic chemistry is just like biology, you have to revise again and again. ठीक है, क्योंकि रिविजन से ही आपको ब्लॉक्स और पीरियड्स के वो याद होंगे. आई वुड से ब्लॉक्स और पीरियड्स के आपको ट्रेंड्स याद होंगे, और ब्लॉक्स और पीरियड्स के आपको कैरेक्टरिस्टिक याद होंगे, वो भी आपको रिविजन से ही याद हो पाएंगे. ठीक है, क्योंकि NCERT में बहुत बड़ा दिया हुआ है. तो आई वुड से आप एक पेज में एक ब्लॉक या एक ग्रुप या एक पीरियड के कैरेक्टरिस्टिक लिख लो कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे पीरियड में कौन सा चीज़ बढ़ रहा है और कौन सा चीज़ घट रहा है, और ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे व्हाट इज़ इंक्रीजिंग एंड व्हाट इज़ डिक्रीजिंग. ठीक है, एंड रिवाइज एज मैनी टाइम एज पॉसिबल. ओके, क्योंकि रिविजन से आप जितना ज़्यादा रिविजन करोगे, आपको उतना ज़्यादा ट्रेंड्स और ब्लॉक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स याद होंगे. और लोग जनरली क्या करते हैं, जो लास्ट में यूजेस दिया होता है उसको लोग इग्नोर कर देते हैं, बट दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. यूजेस से सवाल आते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखिए, आपको मिलेंगे कि उससे सवाल आए हुए हैं. एंड फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई वुड से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड्स देखिए, क्योंकि सवाल उन्हीं गिनो चुनों में से ही आता है. हर बार वही सेम सवाल, वही सेम चीज़, बस थोड़ा ट्विस्टेड करके दे दें, बट वही सेम चीज़ आता है. ठीक है, एंड
inorganic chemistry, without exception there is no inorganic chemistry. So exception is very important, क्योंकि जनरल ट्रेंड्स एवरीवन नोज, लेकिन आपको एक्सेप्शन ज़्यादा याद होने चाहिए क्योंकि सवाल एक्सेप्शन से ही बनते हैं. ठीक है, एक्सेप्शंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आप एक्सेप्शन को एक पेज में अलग से लिख लो एंड रिवाइज दैट एक्सेप्शन अगेन एंड अगेन. ओके, नाउ कमिंग टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई वुड से देयर इज़ no need to go deep into the mechanism of the reaction. Okay, like you remember what is the reagent, what of type of reaction it gives, and किस substrate पे वो काम करता है. ठीक है, people go deep into the reaction and learn all those big kinds of reaction. No need to learn that. Like I would say, आप सिर्फ अगर reagent याद कर रहे हो और वो reagent कौन सा reaction देता है, क्या प्रोडक्ट बना रहा है, दैट इज़ मोर देन इनफ. ठीक है, दैट इज़ लिटरली मोर देन इनफ फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, एंड नाउ कमिंग टू फिज़िक्स, जो कि सबसे हार्ड सब्जेक्ट है. मेरे लिए भी वही हार्ड था, विच इज़ द मोस्ट हार्ड सब्जेक्ट. लाइक फॉर मोस्ट ऑफ द नीट स्टूडेंट फिज़िक्स इज़ द मोस्ट हार्ड सब्जेक्ट. ओके, सो फिज़िक्स इज़ नॉट लाइक बायोलॉजी और केमिस्ट्री की रट के हो जाए. फिज़िक्स के लिए आपको कंसेप्ट चाहिए. हर एक क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट चाहिए. बाय रटिफाइंग इट, रटिफाइंग द फार्मूला, यू कांट डू फिज़िक्स, क्योंकि फार्मूला लगाने के लिए भी आपको कंसेप्ट की ज़रूरत होती है. अगर किसी सवाल में सिर्फ थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाए तो आप वहाँ पे फंस सकते हो, अगर आपने सिर्फ फार्मूला याद किया है विदाउट हैविंग द कंसेप्ट. ओके, सो you can't just memorize the formula for physics. I would say solve as many numericals as possible. मैंने लिटरली 200 क्वेश्चन सॉल्व किए थे पर चैप्टर फिजिक्स के लिए. ऑब्वियसली एक गोल में आपका पूरा सवाल नहीं सही होता है. ठीक है, लेकिन अगर आपने 50% भी फिजिक्स में सही किया है ना प्रैक्टिस के टाइम पे, तो इट मीन्स यू नो द बेसिक थिंग. ओके, एंड आई वुड से कि पीपल स्टार्ट सॉल्विंग डायरेक्टली फ्रॉम द हार्ड क्वेश्चन इन फिजिक्स. Please don't do that. I literally request you, please don't do that. Okay, firstly go with the easy question, go with the basic question, क्योंकि आप पहले अपना बेसिक सही करो. ईजी सवाल का मतलब ये नहीं कि एकदम ईजी ही फार्मूला अप्लाई करें. आप ईजी सवाल बनाओगे तो आपको फार्मूला याद होगा. फार्मूला याद करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप जस्ट उसको याद कर लो, लिख लो एक पेज में, उससे फार्मूला नहीं याद होता है जब तक आप उसको क्वेश्चन पे अप्लाई ना करो. ठीक है, तो आप सबसे पहले इजी सवाल से शुरू करो, देन गो टू मीडियम एंड देन गो टू हार्ड क्वेश्चन. ओके, डोंट स्टार्ट सॉल्विंग द हार्ड क्वेश्चन डायरेक्टली बिकॉज दैट विल डीमोटिवेट यू एंड यू वुड फील लाइक फिज़िक्स मेरी बस की नहीं है, मेरे से फिज़िक्स नहीं होगा. एंड देन नेगेटिव थाट्स, it's a negative thought is like cascade of reaction. It goes on increasing and increasing and increasing, which is not good for your preparation, which is literally not good for your preparation. So please don't do that. Talking about the paper strategy, like how I solved the paper. उस दिन मैंने कैसे अपना पेपर सॉल्व किया था, तो मैंने उसी तरीके से पेपर सॉल्व किया जिस तरीके से मैं मॉक टेस्ट में पेपर सॉल्व करती थी. सबसे पहले मैंने बायो से शुरू किया. लाइक मॉक टेस्ट में भी मैं सबसे पहले बायोलॉजी सॉल्व करती थी, केमिस्ट्री सॉल्व करती थी, एंड देन आई वुड गो फॉर द फिजिक्स, क्योंकि मेरा ऐसा स्ट्रैटेजी होता था कि मैं बायोलॉजी को जितना जल्दी सॉल्व कर सकूँ उतना कर लूँ. लाइक बायोलॉजी 1 घंटे में हो जाता था इफ़ इट्स अ लेंदी पेपर, और मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स में हो जाता था बॉटनी एंड जूलॉजी मिला के. ओके, सो 45 मिनट्स फॉर द बायोलॉजी एंड देन आई वुड जंप फॉर द केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में भी मेरा यही होता था कि मैं जल्दी से जल्दी केमिस्ट्री सॉल्व कर लूँ. अगर केमिस्ट्री का लेंदी पेपर नहीं है तो वो भी मेरा 45 मिनट्स में हो जाता था. ओके, लेकिन इफ़ इट्स लेंदी तो मुझे पूरे 1 घंटे लग जाते थे. सो 45 मिनट्स गोज़ इन बायो एंड देन अगेन 45 मिनट्स गोज़ इन केमिस्ट्री. उसके बाद मेरा जितना भी बचा हुआ समय होता था मैं फ़िज़िक्स को देती थी, क्योंकि फ़िज़िक्स मेरे लिए वीकेस्ट सब्जेक्ट था. तो मैं फ़िज़िक्स को धीरे धीरे सॉल्व करती थी. ठीक है, क्योंकि उसमें मेरे को टाइम भी लगता था, मुझे उसमें सोचना पड़ता था. ओके, सो और इसी स्ट्रैटेजी को मैंने उस दिन पेपर में भी अप्लाई किया. मैंने सबसे पहले बायो सॉल्व की, देन मैंने केमिस्ट्री सॉल्व की, एंड देन आई गो फॉर द फिज़िक्स. ओके, and the most important thing is time management. Okay, time management, avoiding the panic,
and staying calm. These three things are the game changers in paper. Okay, they are literally the biggest game changers for anyone, I would say. Okay, and I would say for anyone, हर किसी के जर्नी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं. मेरे भी जर्नी में अप्स एंड डाउन्स थे. किसी की भी जर्नी स्मूथ नहीं है. ओके, एंड एवरी वंस जर्नी इज़ डिफरेंट. हर किसी की जर्नी अलग अलग है. हर किसी के जर्नी में अपने उनके तरीके के डिफ़िकल्टीज़ हैं. ओके, तो मॉक टेस्ट में ऑब्वियसली कभी अच्छे नंबर आते होंगे, कभी कम नंबर आते होंगे. अच्छे नंबर आते होंगे तो आप मोटिवेट होते होंगे. मैं भी मोटिवेट होती थी कि अच्छे नंबर आए हैं तो और अच्छे लाने हैं. और अगर लो नंबर आ जाते थे तो डीमोटिवेट हो जाती थी कि इतना मेहनत कर रही हूँ फिर भी नंबर कम आ रहे हैं, ऑल दोज थिंग्स. तो आई वुड से अगर लो नंबर आ रहे हैं तो आप अपने आप को डीमोटिवेट ना करके मोटिवेट करिए कि इस बार कम नंबर आए हैं, अगले टेस्ट में मैं 20 नंबर या 30 नंबर या 50 नंबर में और बढ़ाऊँगा या बढ़ाऊँगी. ठीक है, मुझे मालूम है बोलना बहुत आसान है बट करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल और टफ होता है. लेकिन अगर आप ये करते हैं तो ये आपके जर्नी को और पुश देगा इन अ पॉजिटिव मैनर. क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि नंबर कम आ रहे हैं, मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा, तो दैट नेगेटिव एनर्जी विल कंज्यूम मोस्ट ऑफ योर एनर्जी और आपके पास एनर्जी नहीं बचेंगी कि आप अपनी मेहनत में और अपनी जर्नी में लगा सकें. ठीक है, so you have to motivate yourself. There will be time when you yourself have to motivate yourself. Okay, and sometimes failure would make you cry. Like मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो आप रोएंगे कि इतना मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है. बट आई वुड ऑल्सो से कि फेलियर वुड ऑल्सो मोटिवेट यू. लाइक lowing scoring mock tests have also motivated me sometimes to work even more harder, to challenge myself, to improve myself for betterment. So you motivate yourself in those case, in those situation, to work even more harder and improve yourself. And so these all were the things that have happened in my journey. And everyone's journey is difficult, everyone's journey has up and down. Okay, so don't compare your journey with anyone else. Everyone's journey is special. मेरी journey अलग है, आपकी journey अलग है. ठीक है, like I would say NEET exam is hard for everyone, like for everyone who is giving the NEET examination. Okay, but at the end everything will be worth it. The moment you will wear the white coat, the moment you will wear the stethoscope, the moment you will be relieved that you have worked hard, you have achieved your dream, you are living the dream you have dreamed of. Okay, so like I would say NEET exam is hard for everyone, like for everyone who is giving the NEET examination. Okay, but at the end everything will be worth it. The moment you will wear the white coat, the moment you will wear the stethoscope, the moment you will be relieved that you have worked hard, you have achieved your dream, you are living the dream you have dreamed of. Now talking about my MBBS experience. So how is my MBBS experience up till now? So MBBS is no doubt, it's a new chapter of my life. It's very exciting, very adventurous, full of experiences, full of knowledge, but at the same time it is full of challenge. It's challenging, it's tiring, but it's also beautiful and worth it because I have worked hard for it. Okay, मुझे शुरू से ही डॉक्टर बनना था और मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है. तो बिकमिंग अ डॉक्टर, it have always been my dream since childhood, and I would say success takes time. No doubt success takes time. एंड अगर किसी को सक्सेस जल्दी जल्दी मिल रही है तो दैट विल बुल्ड हिज और हर ईगो, क्योंकि फास्ट सक्सेस बुल्ड्स ईगो. क्योंकि फिर उस इंसान में ऐसा होगा कि मैं तो कभी फेल होता ही नहीं हूँ, मुझे ये भी मिल जाएगा, मुझे ये भी मिल जाएगा. बट अ स्लो सक्सेस बुल्ड्स योर कैरेक्टर एंड पीपल जज अ पर्सन बाय हिज और हर कैरेक्टर. एंड एवरीवन नोज़ दैट फेलियर इज़ द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस. लेकिन जब फेलियर आते हैं तो लोग सह नहीं पाते हैं, लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, हार मान लेते हैं बीच रास्ते में. तो अगर फेलियर आ रहा है तो आपको संयम रखना है और आपको अपना कर्तव्य करते रहना है. लाइक
आपका कर्तव्य है वर्क हार्ड, आपका कर्तव्य है काम करना, बाकी सब कुछ आप ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। ऊपर वाले को जो देना होगा जब देना होगा वो आपको दे देगा, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट विच इज़ आई गेस हार्ड फॉर मोस्ट ऑफ अस कि पीपल जज यू। मेरे को भी लोग जज करते थे, मेरे को भी लोग ताना सुनाते थे, यू नो whom I am talking about, द रिलेटिव्स, द सो कॉल्ड रिलेटिव्स। तो आपके जर्नी में सिर्फ कुछ लोग ही होंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे, कुछ लोग ही होंगे जो आपको मदद करेंगे, मोटिवेट करेंगे मूविंग फॉरवर्ड होने में, आप मूव फॉरवर्ड कर सके, आपको कुछ लोग ही मोटिवेट करेंगे, सारे लोग नहीं कर सकते हैं, ओके। एंड आई नो इट इज़ वेरी टफ, मेरे लिए बोलना बहुत आसान है, आपके लिए सहना और करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एंड व्हेन पीपल डाउट यू, व्हेन पीपल जज यू, जब लोग आपको ताने मारते हैं तो इट फील्स लाइक द वर्ल्ड इज़ अगेंस्ट यू, द वर्ल्ड डजंट वांट यू टू मूव फॉरवर्ड, द people around you are against you, you feel like your world is falling down, you can't achieve your dream, when no one is supporting you at that moment, when you are alone. I know that feeling, I have also went through all those feelings and it's very hard। और उसी hard moment में आपको अपने आप को motivate करना है, okay। and obviously success will obviously come to you if you will work hard, if you will move forward and believe in yourself। So to all the students who are preparing for the NEET UG journey right now, I would say believe in yourself, because all you can do is believe in yourself, वो आपके हाथ में है, and working hard, ठीक है। आप अपने आप पे मेहनत करिए, अपने आप पे काम करिए, अपनी गलतियों को सुधारिए, वर्क हार्ड करिए, डीमोटिवेट ना होइए और अपने आप को मोटिवेट करिए, ठीक है। एंड आई वुड से लाइक इफ़ आई कैन डू इट then you can also do it। and all the best to everyone who is preparing for the NEET UG journey। I hope you get your medical college, your dream medical college and an MBBS seat in India, and you become a very good doctor so that you can serve the society, so that you can serve the people, like so that you can serve the mankind। Thank you।